Hello students, we are going to start our first sum of the chapter Death of a Partner. This is chapter number 5. Look at your book, Practical Problems, page number 203, sum number 3. Okay, you must have seen my theory video. मेरा थियोरी वीडियो में मैंने पूरे रूल्स आपको बता दिए हैं, तो उसी आधार पर आपको सम स्टार्ट करना है. फर्स्ट स्टेप, लाइंस ड्रॉ करो. हेडिंग्स आपने डाला है क्या, चेक कर लेना. ओके, इन द बुक्स ऑफ कुछ भी नहीं दिया होगा. नेम ऑफ द बिजनेस इज नॉट गिवन, जस्ट राइट इन द बुक्स ऑफ बिजनेस. देन वी हैव 3 अकाउंट्स: रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट आफ्टर द डेथ ऑफ पार्टनर. Okay, after first step is draw the lines and keep ready. See, in this chapter they might not ask you full sum. पूरा sum नहीं पूछते, इसलिए कि here we are doing the full sum. 3 things we are doing. Revaluation, इसका और एक नाम है profit and loss adjustment account. तो we are doing profit loss adjustment account, partners capital, balance sheet. ये full sum होती है. Sometimes they are asking you only one partner's capital account. See sum number 1 and the working they have asked. Then in sum number 4 also they are asking only one partner's capital account. So you should be careful as to what they are asking. बोर्ड में याद रखना, जो पूछा गया उसी के लिए आपको मार्क्स मिलेगा. आप एक्स्ट्रा करोगे आपको मार्क्स एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाला. So in this sum they have asked us prepare revaluation account, Keshav capital account showing the amount payable to his executors. That means they have asked only Keshav capital account. Keshav dies. Keshav died on 31st July. तो केशव का ही कैपिटल अकाउंट पूछा है, केशव कैपिटल अकाउंट. बट ये अपना फर्स्ट सम है बोल के मैं पूरा सम आपको समझा रही हूँ. अगर आपने एक्स्ट्रा किया तो मार्क्स कम नहीं होगा, पर एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेगा. सो लेट अस स्टार्ट. Ram, Madhav and Keshav are partners sharing profits and losses in the ratio 5:3:2. That means the ratio is 5 plus 3, 8, 8 plus 2, 10. That means 5 upon 10, 3 upon 10, 2 upon 10. Remember, their balance sheet on 31st March is given to you. Balance sheet is given to you. Keshav died on 31st July 18. So the date here is 31st July 18, after death of partner. So after you draw the lines, you start reading the sum. First step is transfer all the assets to the balance sheet of your answer asset side. जो भी assets है सबको ट्रांसफर करना है आपको asset side में. अगर बाई चांस यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आती है तो वो जाएगा पार्टनर के कैपिटल में डेबिट साइड में, पर वो है नहीं. एंड नेक्स्ट यू विल ट्रांसफर द लायबिलिटीज. चलो हम स्टार्ट करते हैं. ट्रांसफर करने के लिए हर एक आइटम के नीचे आप देखोगे कि मैं 2 या 3 लाइन छोड़ने वाली हूं. आई विल बी लीविंग 2 or 3 लाइन्स. लीव 2 लाइन्स और 3 लाइन्स एज यू फील. वी हैव लॉट्स ऑफ स्पेस, जगह बहुत है. गुडविल 50,000, लूज टूल्स 50,000, debtor 1,50,000, livestock 1 lakh, and then we have got cash. In this chapter children, leave 5 lines for cash every sum. हर सम में कैश में आप 5 लाइन आप छोड़ ही देना. So you can write cash in the end, so you are sure की जगह रहेगा. Next we go on to liabilities. Liabilities में आप सब ट्रांसफर करोगे liability साइड में, सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल और रिजर्व को छोड़ के. सो जनरल रिजर्व ये क्या है, पिछले सालों का अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, इकट्ठा हुआ प्रॉफिट है जो अभी आपको पार्टनर्स में बांटना पड़ेगा. तो ये आएगा पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, पर फर्स्ट लाइन में कंपल्सरी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ही आ सकती है. So then you can write in the next line by general reserve. Now general reserve की journal entry, general reserve account debit to partners capital. तो by general reserve. Now how will you distribute this? 25,000. Okay, 25,000
into 5/10 into 3/10 into 2/10. Okay, so this will give you 12,500, 7,500 and 5,000. So this general reserve you will distribute it 12,500, 7,500 and 5,000. जनरल रिजर्व को बांट दिए. नेक्स्ट आइटम व्हाट डू यू गेट? क्रेडिटर्स अनपेड रेंट. क्रेडिटर्स अनपेड रेंट ये आउटसाइडर लायबिलिटी, ये हम लोग एक 5-6 लाइन छोड़ देंगे. वी कैन राइट हियर कैपिटल, आई प्रिफर लाइक दैट. क्रेडिटर्स इनर कॉलम एडजस्टमेंट हो या नहीं बाद में बाहर लेके आएंगे. अनपेड रेंट 25,000. After you have done this, you have next item राम, माधव, केशव के कैपिटल है. देखो ये डेट मार्च का है, तब तो केशव जिंदा था. केशव वॉज वन अमंग द पार्टनर्स. इस चैप्टर में ओल्ड पार्टनर्स 3, ऑल द 3, नॉट लाइक एडमिशन. एडमिशन में 2 ही था ओल्ड पार्टनर्स और न्यू पार्टनर्स में एक और आता था. यहाँ उल्टा है, यहाँ ओल्ड पार्टनर्स आर ऑल द 3, 1 2 3. सो बैलेंस में सबका आएगा 1,75,000 and 50,000. So with this we have transferred every item of the balance sheet. Okay, check, we have not left anything. Now we can go on to the adjustments. In this chapter you will be careful about profit for the deceased partner. This is one adjustment where you will be careful about, and the salary to partner or commission to partner. तो इस सम के अंदर we will see in the adjustments. Coming to the adjustments, Keshav died on 31st July 2018 and the following adjustments were agreed by as per partnership deed. First one, remember adjustments 2 जगह जाएगा. 2 इफेक्ट दिए बिना आप आगे मत जाना. Adjustments equal effect of debit and credit. First one, creditors have increased by 10,000. अब creditors बोल रहे कि 10,000 से बढ़ गया, तो creditors अपनी liability है. liability का मतलब पैसा देना पड़ रहा है 1 लाख. अब वो लोग बोल रहे हैं और 10,000 बढ़ गया. It is an increase in your liability. When there's an increase in liability, जब आपकी liability बढ़ जाती है तो वो expense है, तो आपके लिए वो loss है. So revaluation account is the account which revalues the assets and liabilities. अगर asset की value कम होती है या liabilities बढ़ जाती है तो debit में जाएगा. अगर asset बढ़ रही है या liability कम हो रही है तो credit में जाएगा. It is the rules of nominal account. तो यहाँ पर creditors बढ़ रही है तो अपने लिए नुकसान खर्चा है तो debit में जाएगा. लायबिलिटी में आप ऐड करोगे, ऐड रीवैल्यूड, और यू कैन पुट एप्रिसिएशन. आई एम पुटिंग रीवैल्यूड. कितना बढ़ गया? 10,000 से बढ़ गया. आउटर कॉलम 1,10,000. सेकेंड इफेक्ट, इट इज अ लॉस, तो जर्नल एंट्रीज रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स. चिल्ड्रन, इट इज सेम लाइक एडमिशन चैप्टर. एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में ये सब एडजस्टमेंट सेम है. एक चैप्टर पढ़ो तो आपको 2 फ्री में मिलेगा, वैसा है, एक के ऊपर 2 फ्री. सेकेंड एडजस्टमेंट, देयर इज अ प्रिंटिंग मिस्टेक. चिल्ड्रन, इन माय अंडरस्टैंडिंग दिस 3 शुड बी 2 ओनली. ये 2 ही है, ये सब कंटिन्यूड है, तो ही आपको मीनिंग मिलेगा. मेक दिस 4 को 3 कर दो, 5 को 4 कर दो, 6 को 5 कर दो, देन दिस विल हैव मीनिंग, तो ही आपको ये बुक का आंसर मिल जाएगा. Second one, goodwill is to be calculated at 2 years purchase of average profit of 5 years. 5 years का प्रॉफिट दिया है, 1 साल लॉस है, उसका आपको एवरेज लेना है और उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है. 2 years purchase मतलब 2 गुना. So let us start with the calculation for that goodwill.
वर्किंग नोट गुडविल के लिए करेंगे। और फिर आगे दिया है प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग 5 years पे, तो लेट अस फाइंड आउट द एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट एड अप 90,000 प्लस 1 lakh प्लस 60,000 प्लस 50,000 माइनस जो लॉस का अमाउंट है ना उसको माइनस में करना है। माइनस 50,000 अपॉन कितने साल है, 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 अपॉन 5 यू विल गेट दिस एज 50,000। ये 2,50,000 अपॉन 5 मिलता है, तो इट कम्स टू 50,000। सो व्हाट इज योर गुडविल? Goodwill is equal to 2 years purchase. 2 into 50,000 will give you 1 lakh. Now in this sum, children, we already have got goodwill 50,000. Now they are saying it is become 1 lakh. So what is the increase in the value of goodwill? The increase in the value of goodwill is 50,000. ओके, नाउ देर आर 2 ways ऑफ डूइंग इट। इसके ये सम करने के 2 तरीके हैं, मैं आपको समझा रही हूं, पर मैं जो बुक के अंदर जो आंसर आना है मैं वो कर दूंगी, पर सेकेंड मेथड भी वैलिड है। वन इज यू विल एड ओवर हियर 50,000 एंड सेकेंड यहां पर लिखोगे 50,000, क्योंकि आपकी एसेट बढ़ रही है तो फायदा है। सो यू विल पुट हियर एड अप्रिसिएशन 50,000 बाय गुडविल 50,000। But okay, don't, if you want you can do that method, or the alternative method which I am going to do today is they have said Keshav's share in it was to be given to him. Now Keshav's share will come, अगर आपने यहां भी किया तो उसका प्रॉफिट लॉस निकाल के वो उसका हिस्सा उसको मिल जाएगा। आप डायरेक्टली उसको यहां दिखाओ या ये करने के बाद आप यहां दिखाओ तो भी it will be the same answer. You will get the same tally figure in the balance sheet. But what I am going to do now is I am going to do goodwill 1 lakh और केशव का शेयर बोला है। देखो केशव शेयर इन इट वॉज टू बी गिवन टू हिम, तो केशव का शेयर उसमें कितना है? केशव शेयर इज द अमाउंट ऑफ गुडविल इनटू हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, दैट इज 2। देखो लास्ट पार्टनर है, इनटू 2/10 इनटू कितना महीना वो जिंदा था। He was alive for how many months? ये जुलाई है, अप्रैल में स्टार्ट हुआ महीना। अप्रैल, न्यू ईयर बिगिंस अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 months. He was alive for 4 months into the period he was alive. 4/12, 12 क्यों किया? एक साल में 12 महीना है, 12 महीना में से 4 महीना वो जिंदा था। I repeat, this is a very important point. The amount of goodwill into the share of the deceased partner into how many months he was alive. When you work this out, you will get this as 20,000. Now, Keshav's share in goodwill is 20,000. You can only give the entry for Keshav's share if you want. Okay, that is if you are doing only Keshav capital account, 2 lakhs. Okay, so Keshav's share of goodwill is 20,000. So that means we will only raise it by 20,000. ये goodwill raised ऐसे हो गया. So what can we do is we will give Keshav, only raise Keshav's share of goodwill. That means 20,000 Keshav के अकाउंट में दिखा दो by goodwill. जर्नल एंट्री goodwill अकाउंट डेबिट, goodwill डेबिट, यहाँ पर ऐड करो appreciation 20,000. Okay, so here we are giving the effect of debit, journal entry, goodwill account debit to Keshav capital. Okay, but this is not the real way of doing the sum, children. I am doing this so that you all get this book answer, but the actual way of doing this would be adding over here 50,000, क्योंकि अपना अभी goodwill 1 lakh हो गया है, तो यहाँ पर आना चाहिए था प्लस 50, यहां पर भी आएगा 50, तो गुडविल आएगा 1 लाख, और वो जो गुडविल का हिस्सा है उसको बाद में केशव को मिल जाता था इसके प्रॉफिट के थ्रू, पर शायद कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हुई होगी। सो आई एम फॉलोइंग द बुक आंसर, सो वी कैन डू इट लाइक दिस।
बट अगेन आई एम टेलिंग यू दिस शुड हैव बीन 50,000 क्योंकि अभी गुडविल 1 लाख हुआ है. शायद यही कारण होगा कि बोर्ड ने अपने को बैलेंस शीट पूछा ही नहीं है. ओके, बट सिंस वी आर डूइंग हियर 20, आई एम एडिंग ओवर हियर ऑल्सो 20. दैट वॉज द सेकेंड एडजस्टमेंट. थर्ड वन, लूज टूल्स एंड लाइफ स्टॉक आर वैल्यूड एट 80,000. 50 का 80 हो गया. एंड लाइफ स्टॉक इज 120, वो भी बढ़ गया. लूज टूल्स भी बढ़ गया, 80,000 हो गया. लूज टूल्स बिकेम 80,000 एंड लाइफ स्टॉक बिकेम 1,20,000. दोनों बढ़ गया. ऐड करो. अप्रिसिएशन, अच्छी बात है, अपना टूल्स का दाम बढ़ रहा है, वैल्यू इसका. तो 30,000 इज एन इंक्रीज, सो इट इज अ गेन. तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट, नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंस लॉसेस डेबिट, इनकम गेन क्रेडिट बाय लूज टूल्स. बाय लूज टूल्स 30,000. एंड लाइफ स्टॉक भी ऐड करेंगे. ऐड अप्रिसिएशन प्लस 20,000 बाय लाइफ स्टॉक. लाइफ स्टॉक का मतलब जिंदा स्टॉक, भेड़ बकरी मुर्गी गाय भैंस ये सब, ये लाइफ स्टॉक है. तो जर्नल एंट्री फॉर दिस इज लूज टूल्स अकाउंट डेबिट, लाइफ स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. वी गो ऑन टू आवर नेक्स्ट एडजस्टमेंट. एडजस्टमेंट ऑफ आरडीडी. मैंने नंबर्स चेंज किए हैं. आरडीडी वॉज मेंटेन्ड एट 10,000. तो आरडीडी 10,000 है ही नहीं. आरडीडी तो न्यू आरडीडी ये अपने लिए लॉस है, रिजर्व फॉर बैड डेप्ट है ये. आरडीडी 10,000 आउटसाइड 1,40,000 हो गया डेटर्स. अभी सेकेंड इफेक्ट 10,000 का यू विल पुट इट इन रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड टू आरडीडी. इन ब्रैकेट यू कैन पुट डेटर्स 10,000. Now last one is interesting. Commission 2,000 per month. PM मतलब प्रति महीना. Per month was payable to केशव. Okay, this is a full stop over here. ये अलग बात है. पहला इतना ही कर लेते हैं. केशव को जाएगा 2,000 रुपया प्रति महीना. तो अभी ये रिजर्व के लिए था. अब कमीशन के लिए यहां पर डालती हूं. कमीशन एक महीने का 2,000 है. 2,000 इंटू 4 विल गिव यू 8,000 रुपीज. तो कमीशन किसको जाएगा? केशव के लिए. इसकी एक्चुअल एंट्री है कमीशन अकाउंट डेबिट टू केशव कैपिटल, पर कमीशन अकाउंट अपने पास है नहीं, साल के बीच में है तो ये मर गया. सो वी विल पुट इट एज प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट. सो यू कैन राइट हियर बाय profit and loss suspense. In bracket you can put commission account. Only to Keshav you will give 8,000. Profit and loss suspense account debit आप डाल सकते हैं asset side में. Profit and loss suspense account. This is for commission. 8,000. जर्नल एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू केशव कैपिटल. उसी में और भी था. इट वॉज एस्टिमेटेड, सॉरी, द प्रॉफिट फॉर 18-19 वॉज एस्टिमेटेड एट 45,000 एंड केशव शेयर इन इट अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ वॉज गिवन टू हिम. अब ये है एस्टिमेटेड प्रॉफिट, अंदाजन इतना प्रॉफिट होगा. पर 45,000 रिमेंबर चिल्ड्रन, ये पूरे व्यापार का प्रॉफिट है. यू हैव टू ओनली गिव केशव शेयर टू हिम, दैट टू टिल द डेट ही डाइड. दैट मीन्स ओनली 4 months का यू हैव टू गिव प्रॉफिट. सो अगेन लेट्स डू अ वर्किंग के लिए दिस आई विल पुट इट ओवर हियर. तो ये 4 पे जाएगा. केशव प्रॉफिट का वर्किंग है 45,000 इंटू उसका रेशियो है 2/10 इंटू कितना महीना वो जिंदा था, 4/12. So this means
3,000. Okay, so it's only in Keshav profit will you do this multiplication of 4 by 12. So Keshav share in goodwill, this was a mistake here. Okay, 4 by 12 will only come for Keshav's profit. Keshav share of goodwill में 1 lakh into 2/10 ही है ये, because then you get 20,000. I just realized that I had put this 4 by 12 and is wondering कि अभी मैंने ये क्यों डाला, जबकि ये प्रॉफिट के लिए आता है. Just months of alive है ना, that will only come for the working of the profit of the deceased partner. So this comes to 3,000 rupees. केशव का प्रॉफिट है. ये भी कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट. Okay, so journal entry profit and loss suspense account, that you can show it in the asset side. It is a fictitious asset. This is the profit for year. Profit for 4 months. I repeat, this was a mistake children. 4/12 यहाँ से निकाल दो. In the share of goodwill, you will only do the estimated goodwill into the share of the partner. So profit for 4 months come to rupees 3,000. Profit and loss suspense account debit. So by profit and loss suspense in bracket you can put profit. It is 3,000. So with this, our sum is over. We have finished off with all the adjustments. Okay, now we can close the sum. Just check if we have missed out anything. This one is over. Remember the mistake which was made over here. Keshav share in goodwill में आपको months नहीं करना है, सिर्फ share of profit में आपको months करना है. तभी मैंने यहाँ लिख दिया. It was a mistake children. Please rectify it. Let us close the sum. ज़्यादा कहाँ पर है? 30 plus 20 50. ये कम है. Credit side is more. So you will get 50,000. This will give you the book answer 50,000. अगर मैं गुडविल का एप्रिसिएशन पूरा यहाँ डालती तो बुक का आंसर नहीं मिलता. This is 30,000 is the share of profit. Now the very important thing, डेथ के चैप्टर में टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन. 1 मिनट. डेथ के चैप्टर में प्रॉफिट या लॉस ऑन रिवैल्यूएशन आप तीनों पार्टनरों को देंगे. ओल्ड पार्टनर्स को देना है. ओल्ड पार्टनर्स तीनों जन हैं, राम, माधव, केशव. नॉट लाइक एडमिशन. दिस इज वन बिग चेंज इन एडमिशन चैप्टर एंड डेथ चैप्टर. ये तीनों को बांटेंगे. राम कैपिटल, माधव कैपिटल एंड केशव कैपिटल. Okay, now you will distribute 30,000 in the ratio of 5:3:2. तो मिलेगा 15,000, 9,000 and 6,000. 10 से भाग करना है. So this should have gone up. ये ऊपर जाना चाहिए था, तो ये थोड़ा नीचे आना चाहिए था. Okay, so if you are writing in the exam, be careful to leave more 3 lines on top. This journal entry is revaluation account debit to partners capital. तो ये बाई में जाएगा. बाई revaluation, ये प्रॉफिट है 15,000, 9,000 and 6,000. Now we will close the sum. बोर्ड ने आपको पूरा सम नहीं पूछा है, आपको सिर्फ केशव का इतना दिखाओगे तो ही बस हो जाता है. एड अप केशव अकाउंट. टोटल विल गिव यू 92,000. 9 plus 7 is 16 plus 5 is 21. This is 91,500 and this is
5 plus 2 7 and 1 plus 1 is 2. 1,27,500. इसको आप इस तरफ दिखाएंगे. टोटल बैलेंस निकालना है अपने को 92,000 ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर. डेड पार्टनर को डिसीज्ड पार्टनर बोलते हैं. 1,27,500. लेट मी चेक अगेन. 500, 7 plus 5 12, 12 plus 9 is 21, 2 7 8 9 91,000. 500, 5 plus 2 is 7 and 1 plus 1 is 2 and 1. Okay, now be careful of how you will present this. जो डेड पार्टनर है ना, जो मर गया, वो केशव का अलग से लिखना है आपको. There you will write to executor loan account. Very 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 important in this chapter. एक्सिक्यूटर लोन, एक्सिक्यूटर का मतलब जो उसका वारिस है, हु इज अ लीगल हेयर. जो आदमी मर गया उसका विल पत्र कौन आगे चलाएगा? द लीगल हेयर इज कॉल्ड एज एक्सिक्यूटर, उसका लोन अकाउंट. एंड देन ये डेड पार्टनर का था, और जो बचे हुए हैं उनका बैलेंस यू विल शो बाय बैलेंस कैरी डाउन 91,500 and 1,27,500. Now this balance will go in capital. कैपिटल में देखा आपने, 2 ही जन है. जब अपन सम स्टार्ट किए जिंदा था आदमी. We had 3 partners, now we have only 2 partners. Capital account only 2, Ram and Madhav. Ram is 1,27,500 and 91,500, and then leaves a few lines, one line at least, and then put executor loan. It is a new heading. Executor loan account 92,000. Now your sum will tally 100%. बाहर लेके आते हैं अमाउंट को 70,000. ये आ गया बाहर. कैश में कुछ एडजस्टमेंट नहीं था, 25,000, and then we will close the sum. Unpaid rent को भी बाहर लाना है 25,000. Rest everything is come out. Let us add this up. 5 plus 5 is 10. 1 up. 7 8 9 9 plus 2 11. 11 plus 5 is 16. 1 up. 9 10 11 12. 12 plus 9 21. 22 plus 2 is 24. 2 plus 1 3 plus 1 4. 4,46,000. Let us check it here also. Eight, 9, 10, 11. 11 plus 5 is 16. 1 up. 16, 20, 24. 2 per 2, 3, 4. 4,46,000. Perfect children. अपना sum tally that gives you full marks. But board में आपको अगर पूरा नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये मैंने आपको समझाने के लिए किया था, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि अपना ये फर्स्ट सम है. तो आई वॉन्टेड यू ऑल टू अंडरस्टैंड द होल थिंग. बट इन द बोर्ड ओनली 1 पार्टनर इफ यू डू इज इनफ. अगले वाले सम में जितना पूछा है मैं वो ही करूंगी. ओके, सो प्लीज रिवाइज. रिमेंबर द मिस्टेक दैट आई मेड इन दिस सम अर्लियर. ओके, एंड आई होप यू ऑल प्रैक्टिस. ये अगर सम अच्छे से आ गया, आपको आगे का सम्स बहुत इजी लगेंगे. So wish you all the best, happy and enjoy accounting.